On the wee hours of Monday morning, a family in Uttar Pradesh's Hathras district received a call from the school's owner informing them that the 11-year-old son is unwell and is unconscious and that they are trying to take him to a hospital. The family made failed attempts to find their son from one place to another before they found his lifeless body in the car of the accused. Now, the Hathras police have arrested 5 people, including the owner of the school. The print is now standing at the house of Dinesh Baghel, who is one of the 5 accused in this case. According to sources, Baghel and his family members and 3 other teachers killed the 11-year-old boy as a sacrifice for fame and prosperity. However, the accused's family members claim that this is all a conspiracy and that the family would never be doing anything of this sort. Meanwhile, the print also went to the villages of the other students who studied in DL Public School. DL Public School is where the alleged crime had taken place in the intervening night of Sunday and Monday. Other students between the age of 9 to 12 have told the print that several attempts in the past have been made on them as well. Among the 5 people booked for murder apart from Dinesh Baghel is his father Jashodan Singh alias Bhagat, school principal Lakshman Singh and 2 teachers Virpal Singh Baghel and Ram Prakash Solanki. According to police sources, the boy was strangled to death around midnight in the intervening night of Sunday and Monday. Sources said that the teachers were also part of the conspiracy and were in the hall where the students slept. Meanwhile, in Tursan village, the parents of the 11-year-old boy cannot comprehend why the school owner and teachers killed their son. The father, Krishna Kushwaha, said that he enrolled his son in the boarding school, even though it is just 6 kilometers away from their home, to teach him discipline and provide him with better education. Little did the Kushwahas know that their dreams would be shattered one summer morning. घटना के बारे में जैसे मुझे पता चला है, जब मैं अपने यहाँ नौकरी के लिए तो है दिल्ली जाने के लिए जा रहा था, तो सुबह 5 बजे मेरे पास स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल का फ़ोन आता है कि मेरे बेटे की जो है तबीयत ख़राब है, आप जो है हॉस्टल आ जाइए। जी, ये सोमवार सुबह 5 बजे की बात है जो मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैं और मेरा भाई यहाँ से बाइक से निकल गए हैं। निकलने के बाद हमने उसको फ़ोन किया कि आप पहले जो है मेरे क्लिनिक पे आइए, हम मेरे गांव में लेकर के आइए, मेरे बेटे को पहले यहाँ दिखा दें। तो उन्होंने साफ मेरे से मना कर दिया गया है और मना करने के बाद वो निकल गए हैं वहाँ से लेकर के। फिर मेरे को जो है वहाँ बताया कि सादाबाद पहुँच गया हूँ, कि मैं कहीं और पहुँच गया हूँ। तो पहले हमें गुमराह किया गया उसने 1.5 घंटे जो जा करके, और उस समय उस घटना में जो है 3 लोग उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे। नहीं, मैं मोस्टली जो है अपने बच्चे से जो है वीक में चला जाता हूँ या 2 वीक में चला जाता हूँ, और 1 या 2 वीक के बाद वो उससे मैं घर भी ले जाता हूँ। और जब जो वारदात हुई है उससे मैंने उसी दिन जो है 12 बजे उसने जो मेरे से 200 रुपये भी डलवाए हैं, फ़ोन पे करवाए हैं, मोबाइल पे करवाए हैं। वो मैंने लक्ष्मण प्रिंसिपल को वहाँ पे जो फ़ोन पे करवाए। जो बघेल हैं वो वहाँ के बाद पहले मुझे गुमराह करने के बाद जो है वो मुझे 1.5 घंटे बाद मिले। तो सादाबाद में जब जा करके पकड़ा उन्हें जो है वो नशे की हालत में थे और शराब पिए हुए थे, नशे की हालत में। और कौन था उनके साथ 2 बंदे और थे, एक लक्ष्मण सर, एक का नाम मुझे नहीं पता है क्या थे। पर लक्ष्मण जब वो बरामद हुए तो लक्ष्मण भी वहाँ से भाग चुके थे। बच्चा कहाँ पे? बच्चा उनकी गाड़ी में ही था और बॉडी जो है उनकी गाड़ी में ही पाई गई। बच्चा उनके साथ था। निशान कुछ था? जी हाँ, उसके गले पे पूरा निशान था, गर्दन उसकी तोड़ दी गई है। बहुत बेरहमी से उसकी जो है पहले हत्या कर दी गई थी और इसका एक षड्यंत्र रचा गया था कि शायद उन्होंने एक प्लान किया था कि इसको जो मर्डर करके जो है कहीं पे इसको फेंक दिया जाए। बट वो उस प्लान में फेल हो गए क्योंकि उनके कॉल करने के कारण। तो वो जो है पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद नशे में थे वो बहुत ज़्यादा। मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि पुलिस वाले सूत्रों के अनुसार उनको ये पता लगा है कि ये सैक्रिफाइस का मामला है, कुछ तांत्रिक विद्या वगैरह कर रहे थे। आपको कभी शक हुआ आपका बच्चा वहाँ पे 4 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से हॉस्टल में है, ऐसा कुछ आपको जानने में आया? जी, जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे भी जो मीडिया के द्वारा ही बताया जा रहा है। और मेरा बच्चा जो है जब मैं 4 साल से रह रहा, अगर मैं तांत्रिक विद्या अगर कुछ होती तो वो शायद 4 साल से भी चल रही होती। तो आज क्या ये उस स्कूल में आज इसकी डेट में जो 700 बच्चे हैं, शायद यहाँ आसपास क्षेत्र में भी बच्चे नहीं होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं तांत्रिक विद्या का मामला कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पर जाकर के। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको जो है बहुत मौत के घाटी से उतारा गया है। आपको पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया है? पुलिस वालों ने मुझे ये जवाब दिया गया है, नहीं, पुलिस वालों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे तो प्रेस और मीडिया के माध्यम से, अखबार के द्वारा ही पता चल पा रहा है कि ये एक ऐसे तंत्र विद्या करके जो है इसे उतारा गया है। बट मेरे
सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिले गए हैं। टॉयलेट और जो लैट्रिन जो है उसकी उस बेड पे निकाली गई है, जो जिस बेड पे जो मरा है वो बहुत ही मासूम सा बच्चा था, बहुत ही बेरहमी से उसका इस तरीके से कत्ल किया गया है कि उसका गला दबा करके, मुंह बंद कर करके, क्योंकि जब आप देखोगे उस बच्चे को तो उसके होंठ पूरे नीले पड़े हुए थे, उसकी आंखें पूरी काली पड़ी हुई थी, उसके जो आंखों से आंसू पूरे सूख गए थे। तो इस तरीके से बहुत ही बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मैंने उस स्कूल को लिए इसलिए चूज़ किया, मेरे यहाँ क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं बट यहाँ पे अभी शायद हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा भी जाकर के एक दिन अच्छा अधिकारी बने, आईपीएस बने, मेरा एक ही सपना था। तो मैंने उससे सोचा कि उसको पहले अच्छी शिक्षा देने के, बड़ा बनाने के लिए पहले उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा। उस मजबूती के लिए मैंने उसको हॉस्टल में डाला, एक अच्छी शिक्षा के लिए हॉस्टल में डाला, एक अच्छी सभ्यता के लिए हॉस्टल में डाला, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा भी बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा रहे, अच्छे संस्कार मिलें, तो उसके लिए मैंने उसे हॉस्टल में डाला गया। These attempts to kill them have been made in the past. The Hathras police are still investigating the case, even as the 5 men are behind bars. Back in the house of the accused, family members continue to claim innocence. However, they say that Bhagat Baghel did practice tantricism at one point but had left some 8 years ago, after which he planned to open a school. हमारे साथ क्या हुआ था बताओ जरा। हमारे साथ ये हुआ था, एमडी सर के पापा जी उनने हमारा गला दबाया था, उससे हम बेहोश हो गए थे। तब हमारे पापा जी आए, एमडी सर ने कॉल की थी, कॉल के पापा जी को बुलाया था। पापा जी ने यूँ की थी कि अभी गाड़ी नहीं है घर पे बड़ी वाली। तब एमडी सर आए थे सड़क पे, तो ये बुला के ले गए थे। तो उसके बाद ये पापा जी वहाँ से लाए थे हमको, तब ये है हॉस्पिटल, तो यहाँ पे दवाई करवाई थी। दवा करवा के यहाँ की दवा से तो कुछ नहीं हुआ, फिर वहाँ पे ले गए थे हाथरस से दवा ली थी, तब सही हुए थे। ये नाम क्या है जिसने तुम्हारा गला दबाया था? भगत जी अंकल जी। घर में बोला आता है इसने कि मुझे अंकल जी ने दूध दिया है, दूध में कहे वो दे मेरा दूध, मैंने दूध फेंक दिया, मुझे पियो ना गो, तो मुझे मारा है उसने, गला दबा दिया है मेरे गोड़ पकड़ लें पीछे से, पैरन से गोड़ दबा लें, ऐसे बता रहा था। इसका हमने विश्वास नहीं किया था, इसलिए ये हम पे धोखा हो गया। This DL public school is now at the center of this large conspiracy and murder in what has been termed as a case of human sacrifice. For The Print, this is Bismi Taskin reporting from Uttar Pradesh's Hathras.